So we were discussing over the water cement ratio. How to determine the water cement ratio? So that was with the help of this relation between the compressive strength of concrete and water cement ratio. Okay. Another way of determining this water cement ratio was with the help of the another chart, with the help of the another chart showing again the relationship between the compressive strength of concrete and water cement ratio. But here, along with the strength of cement in 20, along with the strength of cement in 28 days, you will determine the value of water cement ratio. Okay, यानी कि आप compressive strength of concrete की value लोगे, strength of cement in 28 days वाला जो भी कर्व होगा वो कर्व पर जाके वैल्यू को इंटरसेक्ट करा के वाटर सीमेंट रेशियो पर ड्रॉप करोगे and that is how you are going to determine the water cement ratio from this curve. The another method of determining the water cement ratio is with the help of this table number 4 of IS 456-2000, which says which gives you the water cement ratio on the basis of the exposure. You are considering the exposure as mild, so for the exposure mild, the water cement ratio is 0.55 for RCC and M20 grade concrete. Okay, for M20 grade concrete and the exposure mild, the value, the maximum water cement ratio that is required to be adopted is 0.55 for RCC. Now, here it has been shown that selection of water cement ratio is taken from the standard curve with respect to the target mean strength of concrete, जो कि हमारा पहला curve था. This obtained value is then compared with the value prescribed from the type of exposure, जैसे कि mild exposure है जो हमने appendix A में देखा of IS 456-1978. ठीक है. Also, the value of water cement ratio is obtained from the curve showing relationship between water cement ratio, cement content and target mean strength. ये भी हमने देखा कि एक कर्व जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ है और सीमेंट का स्ट्रेंथ के कर्व्स है. इन तीनों वेज से हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं. फिर क्या बोल रहा है, lower of above three values is considered as the chosen water cement ratio. This is how you are going to choose the water cement ratio from the three aspects, out of which the lower value will be considered as your final value. ठीक है. Now the next step, coming to the next step, that is step number 5, selection of water and sand content. Selection of water and sand content. For that you need to use table number 4 of IS 1026-1982 to find out the water content. To find out the water content, कि कितना कंटेंट ऑफ वाटर लगेगा किसमें, पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट में. ठीक है. और सेकंड, परसेंटेज ऑफ सैंड कंटेंट टू टोटल एग्रीगेट, यानी टोटल एग्रीगेट का परसेंटेज अगर 100 है तो सैंड का परसेंटेज कितना है. ठीक है. ये दोनों वैल्यूज निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ टेबल नंबर 4. So let's directly come to the table number 4. So this is our table number 4, for which यहाँ पे बता दिया गया है approximate sand and water content, approximate sand का content and water content per cubic meter of concrete for the grade up to M35. अगर M35 तक के ग्रेड के लिए water cement ratio की वैल्यू up to 0.6 तक के लिए and workability की वैल्यू that is 0.8 compaction factor, यानी कि लो वर्कबिलिटी. ठीक है. उसके लिए वाटर कंटेंट की वैल्यू पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, वाटर कंटेंट की वैल्यू पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, यानी कि कितना पानी लगेगा 1 मीटर क्यूब में, तो वो पता है इतना केजी या इतना केजी या इतना केजी फॉर द वेरियस साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स. आपका कौन सा एग्रीगेट साइज चूज करोगे आप, M20 ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, तो उसके लिए कितना पानी लगेगा 186 केजी कितने में, 1 मीटर क्यूब में. सिमिलरली सैंड का परसेंटेज आप कितना मेंटेन करने वाले हो, 35%, यानी कि टोटल एग्रीगेट का परसेंटेज अगर 100 है तो सैंड का परसेंटेज है 35.
This is table number 4 of IS 10262/1982, which is giving us the direct value of water content कितना लेना है and sand का percentage. ठीक है. Now whatever the value has been obtained to us from the table number 4 of water content and percentage of sand, that is required to be adjusted. That is required to be adjusted due to वेरिएशन इन वाटर सीमेंट रेशियो. क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो अगर वेरी करता है तो वाटर कंटेंट भी वेरी करेगा. ठीक है ना. ये वाटर कंटेंट भी वेरी करेगा. कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर वेरी करता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सैंड जोन. ठीक है. जैसे कि आपको इसमें बता दिया गया है वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 के लिए, लेकिन अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 नहीं रहता है तो देयर आर एडजस्टमेंट ड्यू टू वाटर सीमेंट रेशियो. एंड अगर वर्केबिलिटी इतनी नहीं रहती है तो ड्यू टू वर्केबिलिटी ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू अ स्लाइट एडजस्टमेंट्स. कॉम्पैक्शन फैक्टर बोल दिया ना उसने, दैट इज वर्केबिलिटी. उसके हिसाब से भी आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और सैंड जोन के हिसाब से भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. नाउ व्हाट आर दोज एडजस्टमेंट्स? लेट्स सी. Also the value of the water content per cubic meter and the percentage of sand to the total aggregate is shown for concrete above M35 and water cement ratio as 0.35 and workability value as 0.8 for 10 mm aggregate and 20 mm aggregate. The water content would be this much and sand percentage of sand to total aggregate is this much, which is hardly will be in need of you. So let's move to the next slide, that is adjustments. ठीक है. Certain adjustments are required towards the sand content and water content due to variation in water cement ratio. अगर water cement ratio उतना नहीं रहा जितना टेबल नंबर 4 में बता रहा है, that is 0.6, और compaction factor उतना नहीं रहा, कुछ और रहा, जैसे कि 0.8 नहीं रहा और कुछ और रहा. and according to sand zone, अगर sand zone अलग रहते हैं तो adjustments करने पड़ेंगे. Now let's see what are those adjustments which are needed to be done. See, adjustment of value in water content and sand percentage for other conditions. ठीक है. अब देख रहे हैं for sand conforming to grading zone 1, 3 and 4. for sand conforming to, देखिए ऐसा होगा, आपको बताया जाएगा ग्रेडिंग जोन जो है वो 1 है, 3 है या 4 है. उसके हिसाब से आपको वाटर कंटेंट में कितना एडजस्टमेंट करना है, कुछ भी नहीं करना है. लेकिन परसेंटेज ऑफ सैंड में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? तो हाँ, बता रहा है कि 1.5% आप सैंड को बढ़ा दोगे. 1.5% से सैंड को बढ़ा दोगे अगर जोन 1 में है तो. जोन 3 में है तो माइनस कर दोगे 1.5 से, और जोन 4 है तो माइनस कर दोगे 3 से. ठीक है. ये आपको ख्याल में रखना पड़ेगा. ये वैसे आपको अलाउड है आईएस कोड इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आईएस कोड की वैल्यू कोई याद नहीं कर सकता है. आईएस कोड की वैल्यूज को रेफर करना पड़ता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बाय 0.1. अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू 0.8 की जगह 0.7 रहती है या बढ़ जाती है, पहले बढ़ने की बात करते हैं हम. 0.8 की जगह 0.9 रहती है और 0.8 की जगह 0.7 रहती है. तो अगर 0.9 रहती है तो 3% से वाटर कंटेंट बढ़ा दोगे, यानी कि 186 जो था उसमें 3% बढ़ा दोगे. और अगर 0.8 की जगह 0.7 रहता है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 3%, यानी 186 माइनस 3% ऑफ 186. इतनी आपकी वाटर कंटेंट की वैल्यू रहेंगी. और सैंड में कुछ चेंजेस करने हैं क्या, तो बता रहे नहीं.
Next condition, each 0.05 increase or decrease in free water cement ratio, each 0.05 increase or decrease in free water cement ratio. तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो में हल्का सा दैट इज 0.05 का भी कम या ज्यादा होता है तो वाटर कंटेंट तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन 0.05 इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो पर आपको 1% सैंड का बढ़ाना पड़ेगा और डिक्रीज इन 0.05 पर -1 करना पड़ेगा। और अगर राउंडेड एग्रीगेट लेते हो जो कि अब नहीं लेते हो तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। तो दीज आर द एडजस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड if your conditions are slightly different and the preferable conditions has already been listed here and has been discussed also. So without wasting time, let's move ahead. Now, step number 7. Now, since we have obtained the water cement ratio in step 6, and water content, yeah, sorry, water cement ratio in step 4 and water content in step 6, calculate the value of cement content. Calculate the value of cement content. अब देखिए वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू कितना वैल्यू है आपको पता चल चुका है। तो वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू तो पता है, तो और वाटर की वैल्यू वाटर कंटेंट आपको अभी पता चल गया। वाटर सीमेंट रेशियो कब पता चला? स्टेप 4 में। और वाटर कंटेंट कब पता चला? स्टेप 6 में। आपको सीमेंट का कंटेंट मिल जाएगा। सीमेंट का कंटेंट किस में मिलेगा? इन केजी पर मीटर क्यूब, इन केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि वेट ऑफ water will be in kg, weight of unit of cement will be in kg per meter cube. Now compare the cement content with the minimum cement content according to appendix A of IAS 456 1978. आपको क्या करना है? सीमेंट कंटेंट को अब कंपेयर करना है विद द मिनिमम सीमेंट कंटेंट। चलते हैं अब कंपैरिजन पर। So this is our table number 4 of IAS 456 2000 appendix A. According to this, for the type of exposure mild and grade of concrete M20, आपको मिनिमम सीमेंट बता दिया इतना है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज दिस मच। अब आपका जो सीमेंट कंटेंट ऑब्टेन्ड होगा फ्रॉम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, उसको कंपेयर करोगे विद दिस मिनिमम कंटेंट, ठीक है। ये वाटर सीमेंट रेशियो से जो वैल्यू आएगी दिस विल बी कंपेयर्ड विद द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है। कंपेयर द सीमेंट कंटेंट विद द मिनिमम सीमेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स ए ऑफ IAS 456 1978। तो जो वैल्यू बड़ी रहेगी वो आप ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9 फ्रॉम टेबल नंबर 3 of IAS 456 1978 appendix, amount of entrapped air is decided according to the size of aggregate used. आपको entrapped air अमाउंट ऑफ entrapped air भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कंक्रीट के अंदर entrapped air कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड। तो यहाँ पे बता रहा है टेबल नंबर 3 में estimation of air content, approximate amount of entrapped air to be expected in normal concrete is given in table, ठीक है। nominal size of aggregate, for the various size of aggregate the percentage of entrapped air likely to be present is shown कि 10 mm size aggregate है तो 3%, 20 mm size aggregate है 2%, 40 mm size है तो 1% entrapped air as percentage by percentage of volume of concrete, as percentage of volume of concrete available रहना ही है entrapped air इतना परसेंट अकॉर्डिंग टू द इतना परसेंटेज ऑफ इतना साइज ऑफ एग्रीगेट्स। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया कि entrapped air कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये तो आप लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ आपको सब रेफर करके
ही निकल जा रहा है. Now let's come to the last step, that is the step number 10. Determine the final determine finally the content of fine aggregate and coarse aggregate by using formula V equals to W plus C upon SC plus 1 upon P into FA upon SPA multiplied by 1 upon 1000. This is the formula for fine aggregate. Whereas for coarse aggregate, देखिए क्या कर रहा है फॉर्मूले में डिफरेंस. डब्ल्यू डब्ल्यू ई है, सी सी ई है, अपॉन एस सी ई है, प्लस प्लस 1 अपॉन पी था, तो यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस पी हो गया है. एफ ए अपॉन एस पी ए था. एफ ए फाइन एग्रीगेट, यहाँ पे एफ ए की जगह सी ए आ जाएगा और एस पी ए की जगह एस पी ए आ जाएगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट. ठीक है. वेयर वी क्या चीज है वो देखते हैं. वी इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिड्यूसिंग परसेंटेज ऑफ इंट्रैप्ड एयर. वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिड्यूसिंग परसेंटेज ऑफ इंट्रैप्ड एयर. वो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट जिससे आप इंट्रैप्ड एयर निकाल ले रहे हो, यानी कि आपके कंक्रीट का जो भी साइज होगा वो लोगे और उसमें से इंट्रैप्ड एयर का परसेंटेज 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी परसेंटेज है वो निकाल कर रिड्यूस करके. ठीक है. डब्ल्यू तो आप सबको पता है, डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट, सी इज द सीमेंट कंटेंट, एच सी इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ सीमेंट. ठीक है. स्पेसिफिक वेट ऑफ सीमेंट. पी इज द परसेंटेज ऑफ फाइन टू टोटल एग्रीगेट जो आपने निकाला है पहले. परसेंटेज ऑफ फाइन टू टोटल एग्रीगेट या परसेंटेज ऑफ फाइन टू टोटल एग्रीगेट भी कह सकते हैं. ठीक है. अब ये एफ ए क्या चीज है? कंटेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट. कंटेंट ऑफ फाइन एग्रीगेट जो आपको निकालना है, ये अननोन वैल्यू है. एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट. ठीक. और यहाँ स्पेसिफिक वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट. अब देखते हैं हमको क्या क्या पता है. हमको वी पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है. वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जिसमें से हम परसेंटेज ऑफ इंट्रैप्ड एयर निकाल ले रहे हैं. डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट, ये भी हमको पता है. सी इज द सीमेंट कंटेंट, ये भी हमने स्टेप्स में निकाला है. स्पेसिफिक वेट ऑफ सीमेंट दैट विल बी गिवन टू यू. पी इज द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट या परसेंटेज ऑफ सैंड, ये भी आपको पता है. और ये फाइन एग्रीगेट तो आपको निकालना है कि फाइन एग्रीगेट एक्चुअली होगा कितना. स्पेसिफिक वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट आपको पता है, ये या तो आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा इन द न्यूमेरिकल. ठीक है. दैट यू नीड नॉट टू वरी. ओके. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन दैट फाइन एग्रीगेट की वैल्यू एंड कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू. ये कितना कितना चाहिए. अब सीमेंट मिल गया, फाइन एग्रीगेट मिल गया, कोर्स एग्रीगेट मिल गया, वाटर मिल गया. आपका मिक्स डिजाइन तो कंप्लीट हो गया है. ठीक है ना. फाइन एग्रीगेट यहाँ मिल गया, कोर्स एग्रीगेट यहाँ मिल गया, वाटर कंटेंट इसके पहले मिला आपको, वाटर कंटेंट और परसेंटेज ऑफ सैंड दोनों साथ में मिला था. ठीक है. सीमेंट कंटेंट जस्ट इसके बिफोर मिला आपको वाटर वाटर सीमेंट रेशियो के हेल्प से. तो आपका मिक्स डिजाइन तो कंप्लीट हो गया. आपके पास वाटर है, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है. तो बस उन वैल्यूज को आपको रेशियो के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा. दैट्स इट. ताकि आप आगे जितने भी मिक्स डिजाइन करो फॉर दैट पर्टिकुलर M20 हो, 25 हो, इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो आपको बार बार मिक्स डिजाइन नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्स डिजाइन प्रोसेस. Another important question that is mostly asked in the university examination, that is design mix. Yeah, discuss mix design by road note 4 method. So road note 4 method is the method of uh, concrete mix design by the research laboratory of UK. Okay. This is also an extensive laboratory and field experiment carried out by Road Research Laboratory UK. They have established the relation between various properties and various parameters. बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड पैरामीटर्स को लेके इन्होंने भी काफी सारे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है फॉर मिक्स डिजाइन. द प्रोसीजर ऑफ मिक्स डिजाइन इन दिस मेथड इज मोस्टली वन ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट टेबल्स एंड चार्ट्स. दिस इज ऑल्सो अ टेबल एंड चार्ट वाला प्रोसेस विच हैज प्रीवियसली बीन शोन इन आईएस मेथड. ठीक है. अब इसके भी सीक्वेंस को हम एक बार जान लेते हैं कि क्या है. द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड आर इज फॉलोड. सबसे पहले डेटा टू बी कलेक्टेड. सीमेंट का टाइप कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट. ये तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको जानना जरूरी है. ये यूजली आपको पता होता है या तो ये गिवन वैल्यू ही रहेगी आपकी. ओके. दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. टाइप ऑफ सीमेंट कैसा है ये भी आपको गिवन ही रहेगा. फ्री मॉइस्चर कितना है, वाटर
फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबसे पहले क्या करना है, फाइंड एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ। एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ यानी कि आपका कैपिटल एफ सी के, ठीक है, जिसका आप टारगेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कह रहे थे, वही चीज निकालने बोल रहे हैं, इधर बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे कि एस को यूज करके, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करके भी इसमें एक फॉर्मूले में टर्म है, ठीक है, इनके फॉर्मूले में द फॉर्मूला हैज नॉट बीन शोन हियर, आपको सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन ही याद रखना है, पुराना फॉर्मूला ही जो आप आईएएस मेथड में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए, एफ सी के निकालने के लिए, कैपिटल एफ सी के इक्वल्स टू स्मॉल एफ सी के प्लस टी इंटू एस। तो बस वही चीज याद रख के आप ये पॉइंट लिखेंगे कि फाइंड एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ आइदर बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन दैट इज एस, और एक चीज याद रखना है, और बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट डिसाइड करना है। अब साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे डिसाइड करते हैं ये भी हमने पुराने वाले मिक्स डिजाइन में पढ़ा है कि सेक्शन के थिकनेस को देखकर, कि सेक्शन की थिकनेस कितनी है उसके 1/4 से ऊपर नहीं जाना है हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। या तो स्पेसिंग, अगर कंजस्टेड है रेनफोर्समेंट किसी मेंबर में, तो आपको क्या करना है, क्लियर स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट उतना साइज ले लेना है, या तो कवर से 5% कम, ठीक है ना, सॉरी 5 mm कम, या तो कवर से 5 mm कम। तो यही फैक्टर को यूज करना है यहाँ पर भी। आगे चलते हैं, शेप ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट कैसा ले रहे हो उसका शेप आपको असेस करना है, देखना है, विजिबिलिटी से आप को पता चल जाएगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ द एग्रीगेट। अब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की क्या रहेंगी, लो, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, क्या डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहेगी आपको मेंटेन करना है। यूजली हम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितनी रखते हैं, लो टू मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आप डिसाइड करिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी आप कितने ले रहे हो फॉर द टाइप ऑफ वर्क बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस और बाय मेकिंग यूज ऑफ टेबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेकिंग यूज ऑफ टेबल, हम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो या मीडियम लेकर उसकी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं कि वर्केबिलिटी इक्वल टू 0.8 0.9 जो भी है। नेक्स्ट, फ्रॉम द एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ जो कि आपकी ऊपर आ चुकी है, एंड टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट आपको गिवन रहेगा, फाइंड आउट द वाटर सीमेंट रेशियो, फाइंड आउट द वाटर सीमेंट रेशियो। और वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, वही सब चीजें है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालते थे हम, एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ जो हमको वाई एक्सिस पर मिल रही थी, और सीमेंट का अगर आपको स्ट्रेंथ पता है तो आप उसकी स्ट्रेंथ लेकर आपको वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाएगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, या सेकंड सेकंड मेथड क्या था, आप टेबल यूज कर सकते हो, टेबल में टाइप ऑफ सीमेंट, सॉरी, टाइप ऑफ एक्सपोजर चूज करके आप वाटर सीमेंट रेशियो निकाल सकते हो। या तो थर्ड, आप क्या करोगे, अगेन एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ को यूज करोगे, और अ, आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ को यूज करोगे और वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो पता होने के बाद, नोइंग वाटर सीमेंट रेशियो, नोइंग द वर्केबिलिटी, आपको वर्केबिलिटी भी पता है क्योंकि आपने डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी खुद चूज किया। So water cement ratio is known to you, known vocabulary is also known, maximum size of aggregate, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी आपको पता है क्या क्राइटेरिया से सिलेक्ट करते हैं, शेप ऑफ एग्रीगेट भी पता है, तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो फाइंड आउट कर लोगे, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आप फाइंड आउट कर लोगे। कहाँ से, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट टेबल। हियर इट इज क्लियरली शोन कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसे चूज करना है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख लोगे, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी आपको समझ जाएंगी ये कितनी लेना है। ठीक है, so this is the formula for determining the target mean strength
by node 4 method, that is capital FCK equals to FCK plus K into S. हम T into S ले लेते हैं, यहाँ पे K into S है। वाटर सीमेंट रेशियो वैसे ही निकालना है जैसा निकालते थे एज पर IS 10262, वैसा ही इसमें निकालना है रोड नोट 4 मेथड में। सीमेंट का कंटेंट विद द हेल्प ऑफ टेबल 4 जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। और द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, जितनी भी हम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ले रहे हैं, so for various degree of workability, very low, low, medium and high, for the grading 1, 2, 3, 4 cement contents are given। तो आप वाटर सीमेंट रेशियो जैसे निकालते हो उसके बाद आप करस्पॉन्डिंगली सीमेंट कंटेंट्स निकाल लोगे। सीमेंट कंटेंट आ गया, वाटर सीमेंट रेशियो आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो आपके पास। सो नोइंग वाटर सीमेंट रेशियो एंड उसके बाद सीमेंट कंटेंट मिल जा रहा है वाटर सीमेंट रेशियो से, तो वाटर कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है। वर्केबिलिटी आपने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क से निकाल लिया। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या लेने वाले हो ये आपको आते हैं 3 क्राइटेरिया है उसके लिए। शेप ऑफ एग्रीगेट पता है, तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज फाउंड आउट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट टेबल बोल रहा है। ठीक है। देयर विल बी अ टेबल अवेलेबल जिससे एग्रीगेट सीमेंट रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना। ऑल्सो the aggregate cement ratio pertaining from grading curve is also noted. So there are two ways by which the aggregate cement ratio can be calculated in road node 4 method। यूके का जो मेथड है जिसको आपको गो थ्रू नहीं होना है, सिंपली आपको इसके प्रोसीजर्स को याद रखना है। अब देखो आपके पास क्या क्या आ गया। आपने सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो निकाला, आपने वर्केबिलिटी चूज किया, साइज ऑफ एग्रीगेट चूज किया, शेप ऑफ एग्रीगेट देखा, उसके बाद आपने सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो है आपके पास तो सीमेंट कंटेंट निकाल लिया। अब आगे में क्या है, आप एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को दो तरीके से निकाल रहे हो, या तो टेबल और या तो कर्व। अब उसके बाद अब देखो क्या बचा आपका, वाटर अवेलेबल है, सीमेंट अवेलेबल है, क्या बच गया, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो ये बोल रहा है proportion of available fine and coarse aggregate is found out analytically or by graphical method। so there are two ways जिससे आप अ, आपकी फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोड नोट 4 मेथड जो हार्डली थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है फ्रॉम IS 4 मेथड। आई एस कोड मेथड, सॉरी, IS कोड मेथड पर आपको मिक्स डिजाइन आने भी चाहिए और रोड नोट 4 मेथड के जस्ट प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। दैट इज ऑल अबाउट द मिक्स डिजाइन प्रोसेस। The last point which is left is the field adjustment to be made depending upon the free moisture content and the water absorption characteristic of aggregate। फ्री मॉइस्चर कितना अवेलेबल है एनवायरनमेंट में और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है एग्रीगेट की, इसके हिसाब से फील्ड पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि लैब में तो हमको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं मिलती है फ्री मॉइस्चर कंटेंट की, लेकिन बाहर आपको फ्री मॉइस्चर कंटेंट की काफ़ी क्या कहते हैं वेरिएबिलिटीज मिलेगी, इश्यूज होंगे जिस वजह से। तो फील्ड पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ फ्री मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबिलिटी एंड कितना पानी एग्रीगेट पी रहा है उसके हिसाब से। So that's all about the mix design process of road node 4 method and पहला वाला जो था हमारा that was IS method। Now let's come to the remaining part of your unit 4, that is admixture। So admixture आप सबको पता है स्टूडेंट, एक एडिशनल इंग्रेडिएंट जो हम अपार्ट फ्रॉम वाटर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, हम एक मिक्स, ये पूरे मिक्स में हम इनके अलावा जो एडिशनल इंग्रेडिएंट मिलाते हैं ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट और बिफोर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, दैट इज कॉल्ड एज एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर की एबिलिटीज क्या है, दे कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ योर कंक्रीट मिक्स। सो there are many admixtures available in the market। Very first one we are required to discuss is plasticizers। प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं देखते हैं। नाउ जैसे हम प्लास्टिसाइजर्स की बात कर रहे हैं, प्लास्टिसाइजर्स क्या करता है, हमारे पानी के कंटेंट को कम करके ये एडमिक्सचर वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। तो जनरली वर्केबिलिटी हमारे कंक्रीट की इंक्रीज कैसे हो सकती है अगर जनरली बात करें बिना एडमिक्सचर को ऐड करें।
तो वोकेबिलिटी, या तो आपको इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि आप बड़े साइज के एग्रीगेट लोगे तो सरफेस एरिया कम रहेगा, कम पानी इस्तेमाल होगा, तो वो जो पानी आपने डाला है उससे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। जो आपने नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है उससे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हो गया चेंजेस इन इंग्रेडिएंट। और सिंपली आपको वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो सेकंड पॉइंट दैट इज बाय एडिंग एक्सेस वाटर, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। बट एक्सेस वाटर डालने से फ्लूइडिटी तो मिक्स की इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी काफी सारे क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि होमोजेनिटी आपके मिक्स की वो खत्म हो जाएगी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा, और सेग्रीगेशन होने के, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्लास्टिसाइजर यहाँ क्या काम करता है? क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज इज अबाउट 0.1 to 0.4% ऑफ द सीमेंट मास। लग रहा है कितना है? बहुत ही कम। कितना? 0.1 to 0.4% ऑफ द सीमेंट मास। सीमेंट जितना लगेगा आपको उसका 0.1 to 0.4%। फॉर दिस डोज, फॉर कांस्टेंट वर्केबिलिटी, उतनी ही वर्केबिलिटी चाहिए आपको जितने आप पानी से अचीव कर रहे थे। तो उतनी वर्केबिलिटी चाहने के लिए आप जब इतना डोज लोगे 0.1 to 0.4% के बीच का, तो आपको पता चलेगा कि वाटर आपको 5 से 15% कम लग रहा है और उतनी वर्केबिलिटी आ जा रही है। So there is the water reduction of about 5 to 15% for getting the same workability over this specified dose. ठीक है। At the same time, for the same water cement ratio, at the same time, for the same water cement ratio, the workability is maybe about 30 mm to 150 mm। देखिए क्या हो रहा है कि आपकी लंबी बढ़ जा रही है, 30 mm to 150 mm हो जा रही है। मतलब आपका पानी जो है फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो, अगर आपने एडमिक्सर मिला लिया तो आपका स्लम भी बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 से लेके 150 mm तक चला जाएगा। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है दैट इज डिस्पर्जन। अब क्या हो रहा है? डिस्पर्जन मतलब फैलना, यानी बाहर आना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। द पोर्टलैंड सीमेंट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लॉकुलेट इन वेट कंक्रीट। द पोर्टलैंड सीमेंट का बता रहा है कि टेंडेंसी क्या है? टू फ्लॉकुलेट इन वेट कंक्रीट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर गेट entrapped in the flows, some amount get entrapped in the flows। तो वेट कंक्रीट में पोर्टलैंड सीमेंट जो है फ्लॉक बना देता है। फ्लॉक, फ्लॉक आप सबको समझते हैं, एक क्लम्प क्लम्प बना देता है। क्लम्प मतलब एक डल्ले जैसा बना देता है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जाके फंस जाता है। ठीक है। लेकिन जब प्लास्टिसाइजर हम मिक्स करते हैं तो दे गेट अब्सॉर्ब्ड ऑन सीमेंट पार्टिकल, दे गेट absorbed on cement particle and create particle to particle repulsive force। ठीक है। क्या हो रहा है? फ्लॉक कैसा बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो उसके जो सीमेंट पार्टिकल्स है वो वेट कंक्रीट में क्या होता है, वो सीमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आके वो एक लड्डू जैसा बना देते हैं, छोटे छोटे क्लम्स बना देते हैं। ठीक है। लेकिन हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं तो प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं? सीमेंट से जाके मिल जाते हैं और फिर क्या करते हैं? वो सीमेंट के हर एक पार्टिकल को एक दूसरे से दूर करते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं। इस वजह से क्या होता है? पानी उसमें ठहर नहीं पाता है और पानी वहां से उड़ जाता है, यानी गायब हो जाता है, यानी सरक जाता है, फैल जाता है। ठीक है ना? और वो फ्लूइडिटी के काम आता है। वो पानी फ्लूइडिटी के लिए काम आता है। जो पानी बीच में क्लम्स के बीच में अटक चुका था, अब वो पानी वहां से निकल जाता है और अब वो फ्लूइडिटी इंक्रीज करने के लिए काम आता है। So that is all about the plasticizers। प्रोडक्ट यूज एज प्लास्टिसाइजर्स आर, ये प्रोडक्ट्स के नाम बताए। एनायनिक सर्फेक्टेंट्स में है लिंगोसल्फोनेट, salts of sulfonate, हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स में पॉलीग्लाइकोलेस्टर्स। ओके। तो ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट है बट स्टिल आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। प्लास्टिसाइजर्स की प्रॉपर्टीज तो आई होप आपको क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट और admixture, that is super plasticizers। सुपर प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर के नाम के सामने सुपर लगा दिया है।
So that is an improved version of plasticizers, जिसको हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसर भी कहते हैं. अब ये भी बता रहा है इसका क्या मतलब निकलता है. हाई रेंज वाटर रिड्यूसर मतलब वाटर रिड्यूस कर रहा है लेकिन कितना हाई रेंज में. ठीक है ना. बाय यूजिंग सुपर प्लास्टिसाइजर्स और अ कांस्टेंट वर्केबिलिटी, आपको वही वर्केबिलिटी जो चाहिए जो पानी से अचीव हो रही थी. तो बाय यूजिंग सुपर प्लास्टिसाइजर्स द वाटर रिडक्शन कितना हो रहा है, दैट इज अबाउट 30%, वेरेज प्लास्टिसाइजर्स में कितना था वो, इट वाज 15%. ठीक है. तो ये उससे डबल का काम कर रहा है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोइंग, सेल्फ लेवलिंग, हाई स्ट्रेंथ एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट. हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाना है तो हमको वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा कम करना पड़ता है ताकि हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा आए. और वाटर कम करने के लिए आपको सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज करना पड़ेगा. ठीक है. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी मिलेगा आपको क्योंकि आपने वाटर सीमेंट रेशियो कम किया था. पानी जब कम किया वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया. स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस में ड्यूरेबिलिटी होगी ना, तो ये बढ़ जाती है. सेल्फ लेवलिंग, क्योंकि पानी की वर्केबिलिटी बढ़ चुकी है तो लेवलिंग उसकी बहुत अच्छे से होगी. ठीक है ना. By using superplasticizers, it is possible to use water cement ratio to as low as 0.25. जनरली कितना लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो हम, 0.4 to 0.6. लेकिन विद द हेल्प ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स आप वाटर सीमेंट रेशियो को कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हो. यू कैन रिड्यूस इट अप टू 0.25 और इवन लोअर देन दिस टू ऑब्टेन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए यू कैन इवन लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो फ्रॉम 0.25 ऑल्सो. ठीक है. क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो आप कम करोगे जितनी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी. Product used for used as a super plasticizers are, these are the common names of super plasticizers duly listed here. Kindly at least remember three names out of all. ठीक है ना. The names are modified lingosulfonates, sulfonated melamine, sulfonated naphthalene, acrylic polymer based or cross-linked acrylic polymers. So that's it for the section of today. Tomorrow I'm going to cover this retarders, accelerators, and air entering admixtures. So thank you for the today's lecture.